Hello students, today's class will be 12th of physical education. Today's our topic is obesity. What is obesity? It is a physical condition in which a person has accumulated so much body fat that it might have a negative effect on our health. Obesity has become a universal problem. Worldwide, it has more than since 1980. The problem with obesity is that it exposes the person to potential serious health risks. Obese people are always prone to several potential diseases such as arthritis, hypertension, cancer, flat foot, respiratory diseases, liver problem, diabetes, etc. Now, how can one know if obese? There are many ways to ascertain this, but the best method is through the calculation of body fat percentage. If the body fat percentage exceeds the requirement, then the person may be considered obese. मोटापा यह एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर में बड़ी मात्रा में वसा जमा हो जाती है, जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। मोटापा एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। मोटापे के साथ समस्या यह है कि यह व्यक्ति के संभावित गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा देता है। मोटे लोगों में आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कैंसर, फ्लैट फुट, श्वसन संबंधी रोग और लीवर समस्या और मधुमेह आदि की संभावनाएं हमेशा ही बनी रहती है। इसका कैसे पता लगाएं कि कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है? इसे पता लगाने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका शरीर में वसा की मात्रा की गणना करना है। यदि शरीर में वसा की मात्रा एक सीमा से ज़्यादा है तो व्यक्ति को मोटा मानेंगे। शरीर में वसा की मात्रा की गणना हम निम्नलिखित BMI फॉर्मूले से पता करेंगे। BMI of any individual can be calculated with the help of this formula. किसी भी व्यक्ति की BMI की गणना हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। Here the weight of an individual is measured in kilograms and the height of that individual is taken in meter. यहाँ पर व्यक्ति के शरीर का भार किलोग्राम तथा उस व्यक्ति की ऊंचाई मीटर में नापेंगे। For example, suppose that an individual's body weight is 70 kg and height is 1.60 meter. Now, these values are computed in the formula. Now, with the help of World Health Organization WHO criteria for underweight and obesity, an individual may come to know whether he is under the category of underweight, normal weight, overweight or in the category of obesity. Now students, after having a glance at the above table, it can be said that BMI of the individual, which was 27.34 kg per meter square, falls in the category of overweight, which is more than the required or healthy weight. इस टेबल के अनुसार ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति की BMI जो 27.34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, वह अधिक भार ओवरवेट की श्रेणी में आता है, जो कि आवश्यकता से या स्वास्थ्य भार से अधिक है। Causes of obesity. Obesity is caused by the following factors. First, genetics. A person is more likely to develop obesity if one or both parents are obese. Genetics also affect hormones and fat regulations. यदि माता पिता दोनों मोटे हों तो बच्चे के मोटे होने की ज़्यादा संभावना होती है। आनुवंशिकी के कारण वसा नियंत्रित करने वाले हार्मोन भी प्रभावित होते हैं। Second, overeating. Overeating is when the intake of calories is much more than what the body actually needs. This results in regular deposition of unused calories causing obesity. ज़्यादा खाने से शरीर की वास्तविक ज़रूरत की तुलना में कैलोरी बढ़ जाती है।
इसके परिणाम स्वरूप अनुपयोगी कैलोरी शरीर में मोटापे के रूप में जमा हो जाती है। थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग। ईटिंग फ्रीक्वेंटली लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ अनयूज्ड कैलोरीज। बार बार खाने से शरीर में अनुपयोगी कैलोरी बढ़ जाती है। फोर्थ, फिजिकल इनएक्टिविटी। सेडेंटरी पीपल बर्न फीवर कैलोरीज देन दोज हु आर फिजिकली एक्टिव, रिजल्टिंग इन वेट गेन। सक्रिय लोगों की तुलना में निष्क्रिय लोग कम कैलोरी का उपयोग करते हैं, जिसके चलते वजन बढ़ता है। ओबेसिटी कैन बी रिड्यूस्ड to some extent with the following asanas. First, Vajrasan. Second, Hastasana. Third, Trikonasana. Fourth, Ardha Matsyendra Asana. First, Vajrasana. Vajrasana is a simple sitting pose which can be practiced for 15 to 20 minutes daily, especially after meals as it speeds up digestion. It is also called the diamond pose. सामान्य बैठने की मुद्रा को वज्रासन कहा जाता है, जिसे रोजाना 15-20 मिनट तक किया जा सकता है। इसे विशेष रूप से भोजन करने के बाद करना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन की प्रक्रिया तेज होती है। इसे व्रज मुद्रा भी कहा जाता है। Now students, procedure for Vajrasan. First, kneel down on a flat surface. You may use a mat. Your lower legs should stretch straight backwards with the toes crossing each other. पहले समतल सतह पर घुटनों को नीचे रखकर बैठें। आप चटाई का भी उपयोग कर सकते हैं। आपके पैर के पंजे पीछे की ओर जुड़े हुए होने चाहिए। सेकेंड, sit with your buttocks resting on the heels and the thighs on the calf muscles. अपने कूलों को एड़ी पर और जांघ को मांसपेशियों पर रखकर बैठें। थर्ड, your spine should be straight and your head should face forward. आपकी रीढ़ सीधी और मुंह सामने की ओर होना चाहिए। फोर्थ, रेस्ट योर हैंड्स ऑन द knees. अपने हाथों को घुटनों पर रखें। फिफ्थ, although not compulsory, you may close your eyes while you focus on your inhalation and exhalation. The breaths you take should be deep. ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी आँखों को बंद करके सांस भीतर लेने और सांस छोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। Beginners may hold this position for 5 to 10 minutes daily and increase the duration gradually up to 20 to 30 minutes. शुरुआत करने वाले 5 से 10 मिनट तक रोज़ाना कर सकते हैं और इस अवधि को धीरे धीरे 20 से 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। नाउ, बेनिफिट्स फॉर वज्रासन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन फॉर ओबेज इंडिविजुअल्स और फॉर दोज हु वांट टू अवॉइड बिकमिंग ओबेज इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइजेशन. This position lowers the circulation of blood in the lower legs, diverting it to the abdominal area where the digestive organs are located. वज्रासन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मोटे लोगों या ऐसे लोगों को होता है जो मोटा होने से बचना चाहते हैं। इससे पाचन में सुधार होता है। इस मुद्रा से पैरों के निचले भागों में रक्त का प्रवाह कम होता है और उदर यानी पेट की तरफ प्रवाह बढ़ता है, जहाँ पाचक अंग स्थित होते हैं। सेकेंड, वज्रासन हेल्प्स इन केस ऑफ गैस्ट्रोसियसनेस इन द स्टमक एंड स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स. इट ऑल्सो ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. वज्रासन से पेट में गैस बनने से राहत मिलती है और अल्सर बनना बंद होता है। इससे अपच में भी राहत मिलती है। थर्ड इज अपार्ट फ्रॉम aiding proper digestion of food, this asana is also known to alleviate lower back problems, calm the nerves, strengthen the legs and thighs, make joint of the knees and ankles more flexible and correct posture. भोजन के सही पाचन में मदद मिलने के साथ ही इस आसन से पीठ के निचले हिस्से की समस्याएं कम होती हैं, नसें मजबूत होती हैं, पैर और जांघें मजबूत होती हैं, घुटनों और एड़ियों के जोड़ों में लचीलापन आता है और शरीर की मुद्रा सही रहती है।
Now, precautions for Vajrasan. First, patients of knee and back injuries should be extra careful while practicing this position and should take it up only under the guidance of a trained expert. यह आसन करते समय घुटनों और पीठ की चोटों से पीड़ित मरीजों को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और इसे विशेषज्ञ की निगरानी में ही करना चाहिए. द सेम क्वेश्चन अप्लाइज टू पेशेंट्स ऑफ हर्निया, intestinal ulcers and other diseases of the small and large intestine. हार्निया, आंतों के अल्सर और छोटी व बड़ी आंतों की अन्य बीमारियों के मरीजों पर भी यही सावधानियां लागू होती हैं. इट माइट कॉज स्टिफनेस इन द फीट, एंकल्स एंड नीज. इससे पैर, टखनों और घुटनों में भारी अकड़न की समस्या भी हो सकती है. Last is beginners should take care not to overexert themselves to avoid straining the joints and breathe. नई शुरुआत करने वालों को जोड़ों और श्वास को खींचने में ज़्यादा बल लगाने से बचना चाहिए. Now second, Hastasana. Hastasana is a standing yoga pose. Its complete name is Urdhva Hastasana. It is also called the upward salute pose. This pose extends and activates the whole body. हस्तासन खड़े होकर किया जाने वाला योग है. इसका पूरा नाम ऊर्ध्व हस्तासन है. इसे ऊपर की ओर प्रणाम की मुद्रा में भी, मतलब ऊर्ध्व मतलब ऊपर और हस्त मतलब हाथ, इसे ऊपर की ओर प्रणाम की मुद्रा भी कहा जाता है. यह मुद्रा शरीर में खिंचाव लाती है और सक्रियता बढ़ाती है. प्रोसीजर ऑफ हस्तासन. Hastasana begin with Tadasana or the palm tree pose. Stand with your arms at the side. हस्तासन ताड़ासन या ताड़ के पेड़ की मुद्रा के साथ शुरू होता है. अपने हाथ ऊपर की ओर करते हैं. सेकेंड, नाउ रेज योर आर्म्स जेंटली अपवर्ड टिल दे आर स्ट्रेच्ड अबाउ यू. योर आर्म्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. अब अपने हाथों को इतना ऊपर खींचिए जितना ऊपर ले जा सकते हैं. आपके हाथ एक दूसरे के समांतर होने चाहिए. स्लोली ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर ओवर योर हेड. धीरे धीरे अपने हाथों को सिर के ऊपर मिलाइए. इफ़ यू प्रिफर टू कीप योर पाम्स अपार्ट दे शुड बी फेसिंग ईच अदर. यदि आप अपनी हथेलियों को अलग रखना चाहते हैं तो उनका मुख आमने सामने होना चाहिए. For full extension and activation of your arms, they should be straight throughout. Your shoulders should not touch the ears and the shoulder blades must be pressed firmly on your back. अपने हाथों को पूरी तरह खींचने और सक्रिय बनाने के लिए उन्हें सीधा रखना है. आपके कंधे कानों से नहीं छूने चाहिए. कंधे की हड्डी से पीठ पर दबाव पड़ना चाहिए. Calmly direct your gaze upwards. धीरे धीरे ऊपर की ओर देखें. Align your thighs in such a way that they pull the kneecaps up. अपनी जांघों को इस तरह से सीधा करें कि घुटनों में ऊपर की ओर खिंचाव हो. Strengthen your legs without locking your knees. There should be a minor bend at the knee in order to avoid stretching the joint. घुटनों को मोड़े बिना अपने पैरों को सीधा करें. जोड़ों में तनाव से बचने के लिए घुटनों में मामूली झुकाव होना चाहिए. होल्ड द पोजिशन फॉर अ मिनट एट द लिस्ट. कम से कम 1 मिनट तक इस मुद्रा में रहें. नाउ बेनिफिट्स ऑफ हस्तासन. हस्तासन इज स्पेशली beneficial for those with weight problems since it fully stretches the stomach organs and improves digestion. हस्तासन विशेष रूप से उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनका वजन बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि इससे पेट में खिंचाव पड़ता है और इससे पाचन शक्ति बढ़ती है. एडिशनली इट ऑल्सो स्ट्रेचेस द आर्मपिट्स एंड शोल्डर्स एंड बूस्ट सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी. इसके अलावा आर्मपिट और कंधों में भी खिंचाव पड़ता है और पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है. Hastasana is also known to correct body posture, reduce stress, bring relief for sciatica and tighten the buttocks and abdomen. हस्तासन को शरीर की मुद्रा ठीक करने, तनाव मुक्त होने,
साइटिका से राहत पाने और कूल्हे व पेट को मजबूत बनाने के लिए भी किया जाता है। नाउ प्रिकॉशंस। इंडिविजुअल्स हु हैव शोल्डर्स और नेक इंजरीज शुड अवॉइड दिस पोस्चर। उन लोगों को इस आसन से बचना चाहिए जिनके कंधों और गर्दन में चोट हो। Beginners should first practice strengthening their arms and properly practice Tadasana before taking up Hastasana. Arm can be strengthened by securing them with shoulder with loop around the upper arms, just above the elbows. नई शुरुआत करने वालों को पहले अपने हाथों को सीधा रखने का हस्तासन करने जैसे पहले ठीक से ताड़ासन करने का अभ्यास करना चाहिए। कंधों और कोहनी के ऊपरी भाग का फंदा बनाकर हाथों को पीछे की ओर सीधा करना चाहिए। थर्ड, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन और द ट्रायंगल पोज इज अनदर स्टैंडिंग योगा पोज विच दोज वांटिंग टू कंट्रोल देयर वेट विल फाइंड यूजफुल। त्रिकोण आसन या त्रिकोण मुद्रा भी खड़े होकर किया जाने वाला योगासन है जो वजन कम करने के इच्छुक लोगों के लिए उपयोगी होता है। नाउ प्रोसीजर ऑफ त्रिकोण आसन। The first step is to stand straight with the knees unbent and the feet about 3.5 or 4 feet apart. सबसे पहले बिना घुटनों को मोड़े सीधे खड़े हों और पैरों को 3.5 फुट से 4 फुट तक फैलाएं। Turn your right foot completely to the outside by 90 degrees and the left foot inside by 15 degrees. Your heels should be kept in line with the hips. अपने दाएं पैर को पूरी तरह बाहर की तरफ 90 डिग्री तक फैलाएं और बाएं पैर को अंदर की तरफ 15 डिग्री तक मोड़ें। आपकी एड़ियां कूल्हे की सीध में होनी चाहिए। अलाइन द सेंटर ऑफ द राइट हील विद द सेंटर ऑफ द आर्च ऑफ द लेफ्ट फुट। योर फीट शुड प्रेस द ग्राउंड फर्मली एंड द वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वली बैलेंस्ड ऑन बोथ द फीट। दाईं एड़ी के केंद्र से सीधी रेखा में बाएं पैर को रखें। अपने पैरों से ज़मीन पर दबाव डालें ताकि शरीर का वजन दोनों पैरों पर बराबर पड़ सके। स्प्रेड योर आर्म्स टू द साइड्स। दे शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड विद द पाम्स फेसिंग डाउन। एक्सटेंड योर ट्रंक टू द राइट। अपने हाथों को दोनों तरफ फैलाएं, वे ज़मीन की तरफ समांतर होने चाहिए। साथ ही हथेली ज़मीन पर हो। अपने कंधे को दाईं तरफ झुकाएं। ड्रॉप द राइट आर्म so that the right hand reaches the front of the right foot. दाएं हाथ को ढीला छोड़ दें जिससे दायां हाथ दाएं पैर के आगे पहुंच जाए। Now extend the left arm vertically. Twist the spine and trunk gently in a counter clockwise direction. This time the spine should remain parallel to the ground. अब बाएं हाथ को नीचे स्थिति में ले जाएं। रीढ़ और कंधे को घड़ी की उल्टी दिशा में ले जाएं। इस बार आपकी रीढ़ जमीन के समांतर होनी चाहिए। स्ट्रेच द आर्म्स अवे फ्रॉम वन अनदर। यू मे टर्न योर हेड एंड लुक अप टू इंटेंसिफाई द स्पाइनल ट्विस्ट। हाथों को एक से दूसरे की विपरीत दिशा में तानें। आप अपने सिर को पीछे मोड़कर अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें। होल्ड दिस पोजिशन फॉर 5 to 10 breaths. Inhale deeply. Relax your body with each exhalation. इसी स्थिति में 5 से 10 बार सांस लें और छोड़ें। गहरी सांस लें। हर सांस को बाहर छोड़ते हुए आराम की मुद्रा में आएं। रिपीट द पोस्चर वी स्विचिंग द पोजीशन ऑफ द लेग्स। पैरों की स्थिति बदलकर इस मुद्रा को दोहराएं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ त्रिकोण आसन। इट रिलीव्स गैस्ट्रिक्स, indigestion, flatulence and acidity. Since it helps burn fat, it is highly recommended for those hoping to lose excess weight. ये गैस्ट्राइज अपच, पेट फूलना और एसिडिटी में राहत देता है। इससे पेट में जलन से राहत मिलती है, इसलिए वजन कम करने की इच्छा रखने वालों को इसे करने का सुझाव दिया जाता है। It also improves flexibility of the spine and corrects the posture of the shoulder. इससे रीढ़ का लचीलापन बढ़ता है और कंधों की मुद्रा सही होती है। It massages the pelvic organs and strengthens them. इससे कमर के निचले हिस्सों की मालिश होती है और उन्हें मजबूती भी मिलती है। It reduces stiffness in the back, neck, shoulders and knees.
इससे पीठ, गर्दन, कंधों और घुटनों की अकड़न दूर होती है। इट रिड्यूसेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इससे चिंता और तनाव भी कम होता है। इट improves blood circulation and strengthens the stretches the hips, back, arms, thighs and legs. यह रक्त के प्रवाह में सुधार करता है और कूल्हों, पीठ, हाथों, जांघों तथा पैरों को मजबूत और लचीला बनाता है। Now precautions. This asana should be avoided by those who have migraine, blood pressure problems or injuries of the neck and back. माइग्रेन, रक्तचाप की समस्याओं या गर्दन और पीठ की चोट से पीड़ित लोगों को इस आसन से बचना चाहिए। Those with high blood pressure should not raise their hand overhead if they want to try this pose, as the stance may raise the blood pressure. उच्च रक्तचाप के मरीजों को अपने हाथ ऊपर नहीं उठाने चाहिए, ऐसा करने से रक्तचाप बढ़ सकता है। बिगनर्स शुड प्रैक्टिस दिस अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। नई शुरुआत करने वाले लोगों को एक विशेषज्ञ के दिशा निर्देशन में इसका अभ्यास करना चाहिए। नाउ दोज हु हार्ट कंडीशन शुड प्रैक्टिस अगेंस्ट द वॉल एंड अवॉइड रेजिंग द आर्म, रेदर द आर्म शुड रेस्ट अलोंग द हिप। दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को दीवार के सहारे इसका अभ्यास करना चाहिए और हाथ उठाने से बचना चाहिए। इसके बजाय हाथ को हिप्स पर रखना चाहिए। फोर्थ, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मीनिंग हाफ, मत्स्य मीनिंग फिश, इंद्र मीनिंग किंग। अर्ध मत्स्येंद्र also known as half lord of the fishes pose and half spinal twist pose is a seated yoga pose. One of the 12 basic yogas performed in Hatha Yoga, it is named after Yogi Matsyendranath, who is considered to be the father of Hatha Yoga. It is more complicated version of Vakrasana. अर्ध मत्स्येंद्र का मतलब आधा, अर्ध का मतलब आधा, मत्स्य का मतलब मछली, इंद्र का मतलब राजा। तो अर्ध मत्स्येंद्र को मछली की मुद्रा में अर्ध भगवान और रीढ़ को आधा मोड़ने की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यह हठ योग 12 प्राथमिक योगों में से एक है जिनका नाम मत्स्येंद्र नाथ पर पड़ा था, जिसे हठ योग का जन्मदाता कहा जाता है। यह वक्रासन का जटिल रूप है। प्रोसीजर ऑफ अर्ध मत्स्येंद्रासन। फर्स्ट, सिट अप with the legs stretched out straight in front of you. Keep the feet together and the spine erect. पहले सामने की ओर पैरों को लंबा करके बैठ जाएं, पैरों को मिलाएं और कमर सीधी रखें। Second, bend your left leg. Place the heel of the left foot beside the right hip and bring the right leg over the left knee. अपने बाएं पैर को मोड़ें, अपने बाएं पैर को दाएं हिप्स की तरफ रखें और दाएं पैर को बाएं घुटने पर रखें। थर्ड, प्लेस द लेफ्ट हैंड ऑन द राइट लेग एंड द राइट हैंड बिहाइंड यू। बाएं हाथ को दाएं पैर पर रखें और दाएं हाथ को अपने पीछे ले जाएं। Gently twist your waist, shoulders and neck in this sequence to the right. Looking over the right shoulder, your spine should be erect. दाएं कंधों की ओर देखते हुए अपनी कमर, कंधों और गर्दन को दाईं तरफ धीरे धीरे मोड़ें। आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। Hold the position for a few seconds, keeping your breath steady. कुछ सेकंड के लिए उसी स्थिति में रहें और धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। Exhale and release the right hand first, followed by the waist, chest and then finally the neck. पहले दाएं हाथ को खींचें और छोड़ें, उसके बाद अपनी कमर, सीने और फिर गर्दन के साथ ऐसा ही करें। 7. Sit up, relaxed yet straight. Repeat with the other side. आराम से तनकर बैठ जाएं। अब इसे दूसरी तरफ से दोहराएं। Now benefits. The twisting position massage the abdominal organs, increase the release of
digestive juices and improving the functioning of the digestive system. मुड़ने की स्थिति में आपके पेट के अंगों की मालिश होती है, जिससे पाचक रस ज़्यादा बनता है और पाचन प्रणाली के कामकाज में सुधार होता है. It brings relief from stiffness, stress and tension in the back. इससे पीठ की अकड़न, दबाव और तनाव से राहत मिलती है. By opening up the chest, it greatly increases the supply of oxygen to the lungs. छाती खुलने से फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाता है. It also loosens up the hip and makes the spine for more flexible. इससे कूलों में शिथिलता आती है और रीढ़ लचीली बनती है. It improves the circulation of blood. इसमें रक्त का प्रभाव में भी सुधार होता है. It improves the flexibility of the back muscles, leg muscles, etc. and tones the muscles. इससे पीठ, पैर आदि की मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ता है और उनकी स्थिति में सुधार आता है. Now, precautions. Pregnant women should avoid this position as the twisting of the abdomen might be too strong for them. गर्भवती महिलाओं को इस आसन से बचना चाहिए क्योंकि पेट का मुड़ना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है. सेकंड, people who have had heart, abdominal or brain surgeries and those with spinal problems and slip discs should not practice this आसन. ऐसे लोग जिन्होंने हृदय, पेट या मस्तिष्क की सर्जरी कराई हो और जिन्हें रीढ़ और स्लिप डिस्क की समस्या हो, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए. थर्ड, people who have severe back or neck pain should practice carefully and under the supervision of an expert. ऐसे लोग जिन्हें पीठ या गर्दन में गंभीर दर्द रहता हो, उन्हें इस आसन को सावधानी से और एक विशेषज्ञ की निगरानी में करना चाहिए. Now students, our topic obesity has been over. Next topic will be diabetes and hypertension in further videos. Till then, stay home, stay safe. Thank you.